we are going to learn facts about pollen grains. क्या क्या फैक्ट्स हमें पोलन ग्रेन के बारे में ध्यान में रखने हैं. So first fact you have to remember is polyspory. What is mean by polyspory? Polyspory देखो माइक्रोस्पोरेजेनेसिस में एक माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड होके कितने माइक्रोस्पोर बनाती है? 4 ना. तो यहाँ पे पॉली का मतलब होता है मेनी. अगर 4 से ज्यादा पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं तो इसका मतलब होता है पॉलीस्पोरी. इफ मोर देन 4 pollen grains produced from microspore mother cell, then the condition is called as the microspory. Okay, sorry, then the condition is called as a polyspory. Or this polyspory is mostly observed in a plant Cuscuta. It is found in a Cuscuta, polyspory. Then second fact about pollen grain is a monospory. Mono मतलब single. In a family, कौन सी प्लांट फैमिली? साइपेरेसी. इन अ प्लांट फैमिली साइपेरेसी, only one pollen grain or microspore, only one pollen grain is produced from the, only one functional pollen grain is produced from the माइक्रोस्पोर मदर से. तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है मे बी कि साइपेरेसी प्लांट फैमिली में अगर 100 पोलन ग्रेन्स बनाने हैं प्लांट को तो कितनी मेयोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड होगी? तो यहाँ पे कॉमनली 25 डिविजन्स 100 पोलन ग्रेन्स बना देगी ना, कॉमनली, है ना, जिनमें 4 पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं एक डिवीजन से. बट यहाँ पे एक डिवीजन में फंक्शनल पोलन ग्रेन का नंबर कितना है? एक ही बन रहा है. तो यहाँ पे कितनी डिविजन्स रिक्वायर्ड होगी 100 पोलन ग्रेन्स बनने के लिए? तो साइपेरेसी इज अ प्लांट फैमिली इन विच टू प्रोड्यूस 100 पोलन ग्रेन्स देयर इज अ नीड ऑफ 100 मेयोटिक डिवीजन. दिस इज इम्पोर्टेंट, कीप इन माइंड. ओके, ओनली वन पोलन ग्रेन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल. मतलब मान लो ये साइपेरेसी प्लांट फैमिली प्लांट का ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है डिप्लॉयड. ओके, और यहाँ पे मेयोटिक डिवीजन हुआ और यहाँ पे ये 4 क्या बना? हैप्लॉयड टेट्राइड्स बना. उनमें से ये जो 4 में से 3 जो सेल्स होगी, 3 सेल्स क्या हो जाएगी? डिजेनरेट हो जाएगी और एक ही क्या रहेगा? फंक्शनल मेगास्पोर. तो ऐसे 100 फंक्शनल मेगास्पोर बनने के लिए कितने मेयोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड होगी? 100 ही मेयोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड होगी. एक मेयोटिक डिवीजन में यहाँ पे एक ही फंक्शनल मेगास्पोर बन रहा है, ताकि कॉमनली एक मेयोटिक डिवीजन में 4 फंक्शनल माइक्रोस्पोर यहाँ पे बन रहे हैं. सॉरी, यहाँ पे फंक्शनल माइक्रोस्पोर. ठीक है, ये समझना है. मोनोस्पोरी, पॉलीस्पोरी के बाद में मोनोस्पोरी. देन मोनोस्पोरी के बाद में नेक्स्ट फैक्ट है ट्रांसलेटर apparatus. ट्रांसलेटर apparatus, जी हाँ, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है प्लांट फैमिली ऑर्चिडेसी प्लांट फैमिली में क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स joint
together by a joined together by a bag-like structure called as pollinia. Called as a pollinia. So pollen grains, when they are joined together by a bag-like structure called as a pollinia, and in calotropis, pollinium acts as translator apparatus. Is that clear? Okay. Now move to the next fact about the pollen grain. It's a aeroallergens. Do you know what are the allergens? Allergens are those chemical substances which causes the allergy. They are called as the allergens. So here aeroallergens means the pollen grains of some plants present in air causes allergy. Hence they are called as aeroallergens. For example, the pollen grain of Chenopodium, Parthenium, Amaranthus, and sorghum. So the pollen grains of Chenopodium, Parthenium, Amaranthus, and sorghum are allergens. They causes the allergy. They also causes the respiratory related disorders, bronchitis, asthma, etc. So 4 facts we have seen about the pollen grains, that is polyspory, monospory, translator apparatus, aeroallergens. After the aeroallergens, the next fact about the pollen grain is pollen tablets and the syrup. Pollen tablets and syrups. आपको पता होगा कि पोलन्स का यूटिलाइजेशन एज अ फूड सप्लीमेंट किया, या पोलन ग्रेन्स एज अ फूड सप्लीमेंट्स यूटिलाइज किए जाते हैं. Why these pollen grains are utilized as a food supplements? Because the pollen grains of some plants are rich in nutrients. They are rich in nutrients and used as food supplements. Pollen tablets and syrups can be used to increase the performance. In the athletes and horse. Okay. After the pollen tablets, the next fact about the pollen grain. What you have to remember is a largest pollen grain. कौन सा largest pollen grain है? So for your kind information, the largest pollen grain found in kingdom Plantae belongs to which plant? It is the Mirabilis. Then smallest pollen grain is belongs to plant Myosotis.
longest pollen grain is found in aquatic plant, that is the Zostera. After that, the next fact about the pollen grain is the Nimic phenomenon. क्या होता है ये निमिक फेनोमेनॉन? तो आपने एक न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक सुनी होगी, डाइकॉट प्लांट्स में फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। एक न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक लाइक स्ट्रक्चर form in eight nucleated embryo sac like pollen grains found, मतलब इसमें निमिक फेनोमेनॉन में 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक, फीमेल गैमेटोफाइट का जो 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल स्ट्रक्चर होता है उसके जैसे पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बनता है। तो एक न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक लाइक पोलन ग्रेन्स फाउंड इन hyacinthus by नेमिक नाम का जो साइंटिस्ट था उसने ये डिस्कवर्ड किया था कि पोलन ग्रेन होता है सिमिलर टू दी 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। Hence the phenomenon is called as Nimic phenomenon. And last fact about the pollen grain, which is very very important. इस पे नीट एग्जाम में 2-3 टाइम क्वेश्चन आया है, सो बी केयरफुल नाउ। इट्स अ पोलन बैंक। पोलन ग्रेन्स को हम लो टेम्परेचर में लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर कर सकते हैं। सो पोलन ग्रेन्स can be stored. Pollen grains can be stored for years in what? In liquid nitrogen. So pollen grain can be stored for a year, several years, 100 years. The pollen grains can be stored in a liquid nitrogen at a temperature minus 196 degree Celsius. So the storage of such pollen grains for a year in liquid nitrogen at a minus 196 degree Celsius temperature, और पोलन ग्रेन का यूटिलाइजेशन होता जैसे सीड बैंक होती है, जीन बैंक होती है, उसी तरह ये पोलन बैंक। And the last fact about the pollen grain is a viability of pollen grain. मतलब पोलन ग्रेन रिलीज होने के बाद में कितने टाइम तक वायबल हो सकता है, दैट इज द वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है राइस एंड व्हीट में ये वायबल होता है फॉर 30 मिनट्स आफ्टर इट्स रिलीज। ओके, देन सम प्लांट फैमिलीज सच एज द रोजेसी, member of Rosaceae, Leguminosae, Solanaceae. The members of plant family Solanaceae, Leguminosae and Rosaceae
shows the viability of their pollen grains for a month। मतलब एक महीने तक उनके पोलन ग्रेन्स वायबल हो सकते हैं या एक महीने से भी ज्यादा उनके पोलन ग्रेन्स वायबल रह सकते हैं। सो ये वायबिलिटी जो होती है, वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन, viability of pollen grain is different, है ना। अलग अलग प्लांट्स में आपको अलग अलग पीरियड की वायबिलिटी पोलन ग्रेन्स की देखने को मिलेगी, और इसमें ये डिपेंड्स होता है टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। उस सराउंडिंग की टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पोलन ग्रेन्स की वायबिलिटी को डिटरमाइन करती है। सो हियर वी हैव कवर्ड द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस and the fact related about the